یہ سندھ کی اصل حقیقت ہے۔ موہنجو دڑو میں فیسٹیول ہوا تھا، گئے تھے؟ نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا یہ کبھی؟ سر بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ جگہ میں کھڑا ہوں، یہ کھنڈرات ہیں، سندھ کے کھنڈرات ہیں۔ ان کو تاریخ موہنجو دڑو کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہاں پر آنے کا مقصد موہنجو دڑو کی تاریخی ورثے کو آپ سے انٹروڈیوس کرنا نہیں ہے، اس کے لیے تو بے شمار پروگرام دنیا میں ہو چکے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہاں پہ جو فیسٹیول کا اہتمام کیا موہنجو دڑو میں، اور یہ کہہ کر یہ اعلان ببانگ دہل کر کے کہ جو فیسٹیول وہ کرنے جا رہے ہیں اور جو انہوں نے کیا وہ سندھ کی اصل تہذیب، سندھ کی ثقافت، سندھ کے لوگوں کا ترجمان ہے، اس جملے نے مجھے بہت ہلایا، کیونکہ میں جب بھی سندھ آیا ہوں، ابھی ریسنٹلی بھی ہو کے گیا سندھ سے، تو میں نے جب بھی سندھ کا وزٹ کیا تو مجھے سندھ کے عوام کو مل کر اس لحاظ سے تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن افسوس اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ جس طرح کا یہ کھنڈر ہے، اس کھنڈر سے بھی بدتر حالات میں سندھ کے عوام کا شعور ہے، اور اسی شعور کی بنیاد پر وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے جب بلاول بھٹو صاحب کی یہ بات سنی، جنہوں نے اپنے آپ کو سپر مین کے طور پر انٹروڈیوس کرایا اس فیسٹیول میں، تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ کیا اتنے 3 مہینے میں میرے آنے کے بعد چینج ہو گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اتنا خوبصورت سندھ دکھا دیا جس کی نظیر نہیں ملتی سندھ کی تاریخ میں، یا پھر وہ کیونکہ سپر مین ہے اوپر ہی اڑتے رہتے ہیں تو انہوں نے نیچے آ کے دیکھ ہی نہیں سکے کہ گراؤنڈ کی ریئلٹیز کیا ہے، کیونکہ ہم تو سپر مین نہیں ہیں، ہم تو زمین کے مسافر ہیں، زمین کی قید میں رہتے ہیں، اس کے حصار میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ہم زمین پہ رہ کر بلاول بھٹو صاحب کو پوری دنیا کو اس کیمرے کی نگاہ سے یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ اصل سندھ کیا ہے، وہ جو انہوں نے اپنے فیسٹیول میں یہاں دکھایا موہنجو دڑو میں، یا وہ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا اس ایکسکلوسیو ترین شو میں ویور ساتھ رہے گا شعور کی کھنڈرات کی فرنٹ لائن سے۔ یہ ڈسٹرکٹ لاڑکانہ موہنجو دڑو سے کوئی 25 کلومیٹر دور، یہاں پہ آج سے 2 سال پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ بلڈنگ اس قابل نہیں ہے کہ بچے یہاں پڑھ سکیں، اس بلڈنگ کو ڈینجرس ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود حکومت وزارت تعلیم سندھ نے اس میں کیا کچھ نہیں۔ یہ اس کی کلاس روم ہے، آپ اس کی حالت دیکھیں کتنا خطرناک ہے، یہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ آگے میں کو لے کے چلتا ہوں، یہ دیکھیں یہ کلاس روم کھنڈر ہے، کلاس روم تو نہیں ہے، آگے دکھائیں گے اندر۔ موہنجو دڑو کھنڈرات سے مختلف نہیں ہے یہ۔ سر بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، نہیں ہم جو ہے ریٹن ورک یہاں بورڈ پر کروا کر باہر گراؤنڈ پہ بچوں کو پڑھواتے ہیں۔ بلاول بھٹو جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اگر ریبلڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم ریپیئر کریں، یہ جو چھت ہے وہ دوسری بنوا کے۔ یہ بچیاں بھی جو ہے اس دھرتی کی بلاول اور آسما ہے، اسی اسٹینڈرڈ آف تعلیم میں پڑھنا چاہیے جس میں وہ پڑھیں، کم از کم اگر اس میں نہیں پڑھ سکتے تو اتنا تو ہو کہ یہ لوگ پڑھتے پڑھتے یہاں پہ مر نہ جائیں۔ یہ بچیاں اگر یہاں مر گئیں تو پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو صاحب کو سوچنا چاہیے کہ انہیں ووٹ کون دے گا۔ پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ چیف منسٹر آف سندھ کا چیف منسٹر کون ہے؟ بیسکلی ویورز جو ہے ایک تو ویسے اس پر کی تباہی تو ہے، لیکن آبویسلی بلیم کو نہیں کر سکتے اسٹوڈنٹ کو۔ یہاں پہ جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر جو ہے ہیڈ جو ماسٹر ہے اسکول کے، وہ 6 سال سے جو ہے وہ کبھی کبھی آتے ہیں، نیشنل سروس لینے آتی ہے، تو کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے انفراسٹرکچر نہیں ہے تو باقی چیزیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں موہنجو دڑو سے 25 کلومیٹر دور ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کے اندر پاکستان کا تعلیم جو یہاں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ آبویسلی زبان پر ہے میرے ساتھ۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول ہے یہ، سعید ڈیرو کا۔ یہاں پہ جو ٹیچر ہیں، لیکن ٹیچر کون ہے؟ کوئی بھنگی ہے، کوئی سویپر ہے اسکول سرکاری اسکول کے اندر، کوئی سینیٹری ورکر ہے، اس کو یہاں پہ ٹیچر بنایا ہوا۔ خدا کی کیا سینیٹری، آپ سینیٹری اس پہ آئے ہوئے، یہ سینیٹری کے یہ بیسکلی سینیٹری ہے کہ ورکر ہے، لیکن یہاں کلاس پڑھا رہے ہیں، تو یہ کس طرح ہو گیا معاملہ؟
ये उस्तादों की मेहरबानी है सर। क्या मतलब? जो सैनिटरी वर्कर काम से रिले में तालीम में मेरी MABS अरबी और फारसी में। अच्छा जी लेकिन पोस्ट सैनिटरी वर्कर की इसमें आप टीचर बने हैं, जी तो ये गटर का काम इनका साफ करने की अपॉइंटमेंट है की, लेकिन ये पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब बात करूँ आपकी इजाजत से स्टूडेंट से, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है? वज़ीर आज़म है। अच्छा वज़ीर आज़म कौन थे? वज़ीर आला का पता? सिंध के वज़ीर आला सुपरमैन बिलावल का पता नहीं है। तो ये सुपरमैन साहब आपको तो पब्लिक जानती है, इसमें स्टूडेंट भी नहीं जानते। इसकी वजह ये नहीं है कि आप फेमस नहीं, इसकी वजह ये है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी और एजुकेशन की है। डॉक्टर आप पेपर की पॉइंट में आपको वो भी मेरी कोटा में मेरी अम्मी की टीचर। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ा। आपने क्या हुआ? MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है, जिन्होंने MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है स्वीपर की फिर ये आए में कोटे में स्वीपर आएंगे कोटे के हिसाब से। वैसे यहाँ क्लास पढ़ाते हैं और पढ़ाते अंग्रेजी है। टीचरों की कमी है तो ये पढ़र जो भी लोग हैं ये बंदे हमारे पास है ना, ये उसको कहते हैं बाबा ये क्लास खाली है इसको पढ़ा दो। आपको क्या नाम है? अलीकुर रहमान। अलीकुर रहमान साहब क्या पढ़ाते हैं आप? वैसे तो मेरा काम तो अरबी पढ़ाना है, इस्लामियत वगैरह। अच्छा हिंदी उर्दू ये पढ़ाता हूँ। वैसे आपका काम अरबी पढ़ाना है, लेकिन आप पढ़ाते क्या क्या है? इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और आप तो इस्लामियात इस्लामियात भी पढ़ाते हैं आप, अंग्रेजी उर्दू सिंधी। ले जी ये भी एक यूनिक केस है। हमने आपको दिखाए डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के 2 अहम तरीन आलीशान स्कूल। हम आपको एक और बड़ी अहम जगह पे लेके जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर पीपल्स पार्टी की पूरी मिराज है। वहां पर आपको मैं इंसानियत का एक ऐसा तजाद दिखाऊंगा जो सुपरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नजरों से नहीं गुजरा। या तो वो बहुत ही ऊपर फ्लाई कर रहे थे या देखकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। फिर से मैं गड़ी खुदाबख्श में खड़ा हूं, बेनजीर भुट्टो साहिबा भुट्टो साहब के मजार के अहाते में। मेरे पीछे आप उस मजार की ग्रेटनेस देख सकते हैं। ऑब्वियसली बाकी का सिंध और यहाँ में बहुत फर्क है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाने आया हूँ कि कितना बड़ा तजाद है बेसिकली इसी मजार के अहाते में अवाम में और लीडरान की कब्रों में भी, मज़ारों में भी कितना तजाद है। इस मज़ार के अहाते में ये घर है जिसकी ना छत है, ना कोई हाइजीन है, ना कोई रहने का ढंग है, ना कोई सलीका है। ये वो घर है जो डिपिक्ट करता है सिंध के टूटे फूटे शऊर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि ये है तो पीपल्स पार्टी के जियाले जो इस मज़ार के अहाते में रह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें इनका जो घर जो है ये कॉन्ट्रास्ट है, ये तजाद है उस तमाम पार्टी के मैनिफेस्टो का, उस तमाम पार्टी की जिद्दोजहद का जिसके नाम पर यह पार्टी बरसर इक़्तिदार में आई। इसी आलीशान मज़ार के अहाते में आपको ना यहाँ रोटी नजर आएगी, ना आपको कपड़ा नजर आएगा, ना तन पे, ना मन पे, ना आपको यहाँ पैसा नजर आएगा, ना आपको यहाँ पे कोई पक्की छत या घर नजर आएगा। रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। और ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है, गढ़ का भी गढ़ है। आपको इन आलीशान लोगों से मिलाते हैं जो यहाँ पर इन जानवरों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बल्कि साहबा आप ये मज़ार के अहाते में रहती है? हाँ। कब से ये आपका कच्चा घर जो है? बड़ो टाइम 12 साल 20 साल 20 साल से। हाँ। वोट किसे देती हैं आप? बेनजीर भुट्टो जिंदाबाद। हाँ। और आप बिलावल को देंगे? हाँ। बच्चे पढ़ते हैं आपके या नहीं? क्यों नहीं पढ़ते? बस 5 पेट पाले हमने की पढ़ाई करें। वोट पीपल्स पार्टी को देंगे फिर भी? हाँ। क्या नाम है आपका? हादी बख्श। आपको पक्का मकान नहीं दिया पीपल्स पार्टी ने? बस मकान न था जन वायदा तो कर पिया, रोटी मकान और कपड़ा न था जन वेठा आहियूं बस ऑफिसर ना कहना मिलन कोन था जन जे वञूं था त इहा पुलिस ॿाहिरि धिकी त मोटो कोई ते मोटो हेॾे न अचो नथा अचनि जन बस वेठा आहियूं लटन में मजूरी कई मरे पेट पालियो न काॾे। इमरान खान के बारे में जानते हैं आप? इमरान खान भी ॾिसंदा आहियूं टीवी में हलंदो आहे ॾिसंदा आहियूं। उसे वोट तो नहीं देंगे? नवाज शरीफ साहब को नहीं देंगे? न बेनजीर के बस उनजे सारे अलाए सारे वेठा आहियूं उनजे मैदान में अंदर। इस हालत में भी बेनजीर साहब को बस वेठा आहियूं। यहाँ तो लाइट वगैरह भी नहीं है? न लेकिन बाजार पे लाइट है? हाँ तो लाइट यहाँ पे तो रात को चला हुआ होता है। तो आपके यहाँ लाइट नहीं है? न लाइट। व्यूअर्स, ये हाजी बख्श का घर है, आपको जिस तरह मैंने बताया। भैंसों का तबेला बीच में ही है घर के अंदर। आप सोच सकते हैं शहरों में रह करके जानवरों का तबेला भी घरों के अंदर ही हो, और ये कोई आम जगह नहीं है। ये बेनजीर भुट्टो साहबा के मज़ार का अहाता है। इसके अंदर जो है इंसाफ का ये मेयार है आम लोगों के लिए कि अकल हैरान है और ज़बान गूंग भी होकर रह जाती है। यहाँ पर बेनजीर भुट्टो साहब के मज़ार के अहाते में
गंदगी के अंबार जो है इस घर की दीवार की जीनत है। इतना बड़ा तजाद हुक्मरानों और अवाम का, इतना बड़ा तजाद शायद ही मॉडर्न दुनिया की किसी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी या इवन आमरीत के अंदर आपको नजर आए। और मज़ार की शान जो है, यहाँ पे मदफन है लोग, यहाँ पर लोग वफात के बाद वहाँ चरागा है और यहाँ पे अंधेरा है। वहाँ से खुशबुएं आती हैं, अच्छी बात आनी भी चाहिए, मज़ार है तो खुशबुएं तो आनी चाहिए। यहाँ से जो है वो बास आती है गंद की, सिंध के असल गंद की बास आती है। ये बास शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नहीं वो महसूस कर सके जब वो फेस्टिवल के अंदर बेसिकली तकरीर कर रहे थे, जब वो सिंध के आलीशान कल्चर के बारे में बता रहे थे, उनको ये बास महसूस नहीं, क्योंकि वो कभी इधर आए नहीं। शायद अगर वो आए होते तो इन लोगों को बुलाते हो कि इन लोगों को तो पता भी नहीं वहाँ फेस्टिवल हुआ है, ना ये वहाँ के इन्वाइटेड थे, हालांकि ये सिंधी हैं, बाकियों का पता नहीं। ये मेरे पीछे उस गधा गाड़ी के भी पीछे बाबे जुल्फकार है। मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं, और मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखें आलीशान छप्पड़ है भैंसों का। ये बेसिकली देख के लग तो ये रहा होगा कि मैं दुनिया के किसी गुर्बत के 100 डिग्री नीचे माशरे में खड़ा हूँ, लेकिन ये जगह जो है बड़ी अहम है। ये वज़ीर आज़म की सरजमीन है, यहाँ से वज़ीर आज़म पैदा हुए और आइंदा भी आएंगे। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो बैकवर्डनेस है वो किसी भी लिहाज से ये साबित नहीं करती कि यहाँ कभी कोई वज़ीर आज़म क्या, कोई वज़ीर आला क्या, कोई वज़ीर लेवल का आदमी पैदा हुआ होगा। बच्चे रंग धड़ंग लगे हुए सड़कों पे, ना कोई पूछने वाला ना कोई करने वाला। स्कूल टाइम है ये, लेकिन उनके पास स्कूल ही नहीं है इधर। ये बड़े होकर ना डाकू बनना खुदा ना खास्ता, आज लाठी है इसके हाथ में, कल बंदूकों नहीं है। हमारे गांव वाले बंदे जो भी खेती करते हैं वो सारे के सारे कमदारी खा जाते हैं, वडेरे खा जाते हैं। पर पुलिस का सरगुंडागर्दी पुलिस ने यहाँ पर मचाई हुई है। डीएसपी एसपी ये फेस्टिवल किया था उन्होंने, पता आपको मोहनजोदड़ो में फंक्शन? नहीं सर, नहीं उसमें। भुट्टो साहब को वोट देते? जी। वजह ये वो शहीद मजार की शहीद है, उसकी कुर्बानी है बेनजीर की। ना में घर है ना में नौकरी है, आज तक किसी को वोट नहीं दिया। भुट्टो भी नहीं, भुट्टो को ही दिया। पैदा हुआ है, वोट बना है, और भुट्टो सारे दिन मांगते हैं, घर भी नहीं है, क्या करे गरीब मानो, किसको रोटी कपड़ा भी नहीं। फिर भुट्टो से क्यों वोट देते हो? क्यों नहीं दे उसको? उसके गोठ में बैठे सारे मुल्क के सारे बुढ़ा भी हो जाएगा तो उसको वोट देते हैं। जैसी भी खराब रहे, कार कुछ भी होवे, कपड़ा भी ना हो, कुछ भी नहीं हो, घर भी ना हो, घर भी नहीं हो, उसको वोट देगा। हाँ, भुट्टे को देगा बेनजीर जी। तो अभी आपको लेके चलेंगे एक ऐसे हेल्थ यूनिट की तरफ व्यूअर्स, उसका हाल क्या है आप देखें। सिंध का असल, अगर आपने अवाम की ज़बू हाली या हालत देखनी है तो ये हेल्थ सेंटर आपको दिखाएगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो आबाई हल्का है, आबाई घर है, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट, उसका सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नोडेरो। उसके बाहर की हाइजीन की ये कंडीशन सिचुएशन है। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की जो सिंध की लीडरशिप है वो इस हॉस्पिटल में जाने का सोच भी क्या बैड ड्रीम में भी नहीं देख सकती होगी। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ के ये जो लोग ये खड़े हुए हैं, ये जब मरते हैं तो इधर ही आते हैं, या मरने के करीब होते तब भी इधर ही आते हैं। इसी गंदगी और हॉस्पिटल से आपको मैं रिपोर्ट करूंगा। यहाँ से चलते हैं अंदर। व्यूअर्स, ये गवर्नमेंट नोडेरो हॉस्पिटल का जो है वार्ड है, जहाँ पे जो मरीज जो है वो मर रहे हो तो कोई नर्स नहीं है, जी रहे हैं मर रहे हैं कोई डॉक्टर नहीं है, और वार्ड जो है वार्ड नहीं बरामदा है, तो मरीज के लवायकीन खुद ही लगे हुए उनको ठीक करने, बाकी इधर ना डॉक्टर है ना कोई और है। अच्छा यार, यहाँ पे कोई डॉक्टर शॉक्टर नजर नहीं आ रहा, वार्ड में मरीज वैसे ही डॉक्टर बैठे हैं, दो वो उस वाले वार्ड में नहीं है, बैठे हैं भाई, उधर बैठे हैं। नहीं, जहाँ मरीज है वहाँ नहीं है, नर्सें से भी नहीं है। अभी तो 12 बजे का टाइम है, जुम्मे का दिन है ना, अभी कुछ चले गए। 12 बजे के बाद नर्सें डॉक्टर सब चले जाते हैं? नहीं, नर्स हैं, डॉक्टर बैठी हैं, वो भी बैठी हैं, डॉक्टर बैठे हैं। नहीं, वार्ड में नहीं होते, मैं ये पूछ रहा हूँ। वार्ड में भी बैठा है, दो अल्ट्रासाउंड मशीन ठीक चल रही है? वो भी ठीक चल रही है। वैक्सीनेशन ठीक हो रही है? बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल। व्यूअर्स, ये अभी 12:30 पौने 1 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल में ऑफिस को ताले लगे हुए हैं। अभी तक हमें कोई डॉक्टर नजर नहीं आया, इधर कोई नर्स नजर नहीं आई, कोई प्रॉपर बंदा नजर नहीं आया। अब आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये वन ऑफ द वार्ड्स है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ नर्सेज नहीं है, तो यहाँ मरीज भी नहीं है। ये खाली इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वेस्ट ऑफ मनी है इनकम टैक्स पेयर्स का। आप गंदगी और हाइजीन का आलम देख सकते हैं, इधर छतें टूटी हुई है, गिर रही है, जाले लगे हुए, सफाई का कोई पोजीशन नहीं। हॉस्पिटल जो होता है वो अगर ऐसा होता है तो फिर जो है वो इससे बेहतर तो आई थिंक मेंटेन्ड है,
मोहनजोदड़ो के खंडरात। मेरे साथ यहाँ के लोकल बंदे खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि बेसिकली इस हॉस्पिटल के मसाइल क्या हैं। यहाँ का जो है MS है वो कई अरसे से, कई सालों से जिसको कहा जाए कि वो यहाँ पे नहीं है। नंबर 2 पे जी हाँ, इवनिंग में जो डॉक्टर है वो नहीं आते, उनसे कमीशन लिया जाता है। अभी तो यहाँ पे जो कमीशन किस चीज का? कि ड्यूटी ना करने का। अच्छा, ये जो गंद है हॉस्पिटल में ऐसा गंद होता है? 24 घंटे यहाँ पे C सेक्शन होता है। मैं ये कह रहा हूँ गंद ऐसा होता है जो हॉस्पिटल के अंदर है। ये अभी उठा वो अच्छा टूट रही है वहाँ से। ये तो अभी काम चल रहा है ना हॉस्पिटल का, अंडर कस्टडिंग है, अंडर कस्टडिंग है, ऊपर ये तो ठीक है। हॉस्पिटल जो होता है, मेरी बात सुनो यार, हॉस्पिटल जो होता है वहाँ सफाई होनी चाहिए ना। ये पोजीशन यहाँ हुई हुई है। इस गंद में कौन आग इलाज कराएगा? स्वीपर है, वार्ड में अटेंड करने वाली कोई नर्स नहीं है। नहीं, वार्ड तो ये इस तरफ है ना। वो जो बाहर जो लोग मर रहे हैं, कौन से? वो बाहर जो भी बरामदों में पड़े हुए हॉस्पिटल के अंदर, उस अंदर में। वो तो इमरजेंसी है, ये पता नहीं। वही तो कह रहा हूं, नर्स ही कोई नहीं है। नर्स तो इस तरफ है, ये फीमेल है, औरतों का। उधर का अपॉइंटमेंट ही नहीं है ना नर्स। यही तो अपॉइंटमेंट ही ना है गवर्नमेंट की तरफ से, अपॉइंटमेंट ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। शोबा हादसा में नर्स अपॉइंटमेंट ही नहीं है। ले जी, अपना ये मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मैटरनिटी होम है लोडेरो का, अगेन लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है। ये लिखा हुआ है 24 घंटे सर्विस सिंधी के अंदर। यहाँ पे जो औरतें हमला होती हैं, ऑब्वियसली उनके इलाज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी डिलीवरीज के लिए ये जगह बनाई गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 24 घंटे डिलीवरी का टाइम लिखा, 24 घंटे सर्विस का टाइम लिखा हुआ है, इसके बावजूद यहाँ पे लगे हुए ताले। ये आप देख सकते हैं। डॉक्टर का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्डिंग में ताले लगे हुए हैं। पीछे भी अगर आपको दिखाएं, ये सारी जगह बंद है, ये सारी जगह बंद है। ये बेसिकली पोलिंग स्टेशन भी रहा है ये जगह, उसके लिए तो खुला होगा ये, लेकिन मरीजों के लिए बंद है। ये आप देख सकते हैं, इसका फर्नीचर की पोजीशन क्या है। लगता है काफी अरसे से जो है इसको हुकूमत सिंध ने नहीं देखा। ये है जी असल सिंध, आपको दिखा रहा हूं मैं, जो आपको सिंध फेस्टिवल में नजर नहीं आएगा और किसी हुकूमत के इश्तिहार में नजर भी नहीं आएगा। ये असल सिंध है। ये हेल्थ यूनिट्स हैं, यहाँ औरतें मरती हैं। मैटरनिटी रेट मौत का खवातीन का सबसे ज्यादा है सिंध में, और उसकी वजह यह है कि जो सरकारी इदारे जो 24-24 घंटे लिख के लगाए हुए खुले रहेंगे, वहाँ ताले पड़े में फर्नीचर इस हाल में। और ये आप देखें जरा, ये यहाँ का मैटरनिटी होम का अतराफ है, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी एक्सटीरियर है। लगता है ऐसे है कि किसी पता नहीं किस सदी, 2 सदियां पीछे चले गए हम। इसकी जगह को विजिट करा रहा हूँ मैं, ना कि ये हम 2014 में खड़े हों। जनरेटर्स हैं, चलते नहीं है, खराब है तो खराब ही है, लाइट जाए तो जाए, कोई देखने वाला नहीं, हम दिखा सकते हैं जनरेटर वहाँ पड़ा हुआ है। दोबारा चलेंगे व्यूअर्स, सिंध की अजीम तहजीब कल्चरल फेस्टिवल के वेन्यू बिलावल भुट्टो साहब का जो स्टेज था, उसकी तरफ मोहनजोदड़ो, जो शायद इससे बेहतर है क्योंकि उस जमाने के हिसाब से बहुत मॉडर्न था। ये आज के जमाने में जवाल की निशानी है, शऊर की पस्ती की निशानी है। मेरे साथ रहिए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि सिंध की जो असल बेटियां हैं, बच्चियां हैं, असल से मुराद जो बेसिकली मेजॉरिटी है सिंध की, वो यहाँ पे किस तरह काम करती है। ये बच्चियां इनकी स्कूल जाने की एज है, लेकिन ये स्कूल नहीं जाती, ये यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक यही काम करती रहती है। इनको पता भी नहीं है सिंध क्या होता है, सुपरमैन क्या होता है, सिंध फेस्टिवल क्या है, एजुकेशन क्या है। ये है असल पाकिस्तान, जो मैं आपको यहाँ से सिंध से गड़ी खुदा बख्श मेरे सामने है, वहां से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। कोई यहाँ से 5 मिनट की मुसाफत पे है। ये भी बेनजीर हैं, ये भी बिलावल्स आसवाज हैं, ये भी बख्तावर्स हैं इस मुल्क की, लेकिन ऑब्वियसली इनके पास वो प्रिविलेज नहीं है जो लीडरान के पास है। दिन रात यहीं पे गुजरता है इनका, इनको कुछ नहीं पता कि दुनिया क्या होती है जब ये बड़ी होंगी। जिस तरह यहाँ के लोग मिराज को वोट देते हैं, इनके घर वाले, इनके पुरख, इसी तरह ये भी वोट डालती रहेंगी और इस सिस्टम का हिस्सा बनती रहेंगी। शहरों में बैठ के बात करना बड़ा आसान होता है औरत की एजुकेशन के ऊपर। यहाँ गए आए ना, जरा पता चले आपको। मैं कामरान शायद आपको एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट कर रहा हूँ सूबा सिंध से, पाकिस्तान के अहम तरीन हिस्से से, मोहनजोदड़ो से कुछ किलोमीटर दूर, जहाँ पे सुपरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक फेस्टिवल किया इन बच्चियों के नाम पर, सिंध की तहजीब के नाम पर, असल सिंध से बहुत दूर। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं सिंध की आयरनी है। यहाँ पे मर्द जो है वो बेसिकली ताश खेलते हैं, ये पंजाब में भी वैसे ही पोजीशन है, और औरतें और बच्चियां जो है
वो बेसिकली यहाँ काम करती हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो होता है वो यहाँ पे इस वजह से भी होता है कि मर्द जो है ज्यादातर निकम्मे ही होते हैं और औरतों का काम पे लगाया होता है। जो लोग फतवा देते हैं औरत के बाहर ना निकलने पर और बड़ी चीजों पर पर्दे वगैरह में, वो जरा आके इधर देखें कि ये औरतें अगरचे पर्दे में नहीं है लेकिन ये जो काम कर रही हैं वो इतना अजीम है कि शायद इससे बेहतर काम इंसानियत के लिए और अल्लाह के नजदीक हो नहीं सकता। ये बाहर निकल के ये बच्चियां और ये औरतें जो है वो काम भी करती हैं जिनके मर्दों को करना चाहिए। ये यहाँ की लीडर हैं, ये यहाँ कमांड करती हैं और ऑब्वियसली इनकी ह्यूमन राइट्स नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास तालीम नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सुपरमैन बन के जो फेस्टिवल किया उसकी बाज़गश्त भी यहाँ तक नहीं आती, हालांकि ये जगह गढ़ी खुदाबख्श से सिर्फ 5 मिनट दूर है। इन लोगों को नहीं पता फेस्टिवल क्या होता है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक यही काम है इनका। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तालीम के हवाले से जब तक जमीन पर नहीं आएंगे पता नहीं चलेगा आपको रियलिटीज का। आसमान पे उड़ते रहेंगे सुपरमैन की तरह तो ये चीज नहीं देख सकेंगे, हालांकि आपकी नाक के नीचे है। गढ़ी खुदाबख्श मकबरे के बिल्कुल साथ है, ये पीपल्स पार्टी का आबाई हल्का है, ये लाड़काना के साथ जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। एक वक्त था आपको मैं लेके गया लंदन के साइंस म्यूजियम में, वहां से मैं रिपोर्ट किया और मैंने आपको दिखाया वहां दुनिया का सबसे पहला कदीम तरीन स्टीम इंजन था जिसने बाद में बेसिकली साइंस को के जो पिलर्स हैं वेस्ट के वो डिपिक्ट करता था। ये भी एक स्टीम इंजन है हमारे यहाँ चलता है जो जिसकी बेस के ऊपर जिसे हम ट्रैक्टर कहते हैं, इसकी बेस के ऊपर हल चलता है फसलों में और ये ट्रैक्टर जो है बहुत अहम है। इसको अगर निकाल दें तो ज़राअत खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की। ये यहाँ का सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट है। जिस ट्रैक्टर में मैं खड़ा हूँ इधर ये बड़ा अहम है इस ट्रैक्टर को जहाँ पे मैं आपसे रिपोर्ट कर रहा हूँ। और इसकी जो खास बात है इस ट्रैक्टर की वो ये है कि ये ट्रैक्टर उस स्कूल का हिस्सा है जहाँ पे स्कूल का फर्नीचर तो नहीं है, ये स्कूल है बेसिकली। और ये अगेन डिस्ट्रिक्ट लाड़काना का है, ये अगेन मोहनजोदड़ो से कुछ किलोमीटर है, ये अगेन सुपरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कंस्टिट्यूंसी है। और ये अगेन उनको इसके बारे में यकीनन नहीं पता होगा कि एक ऐसा स्कूल भी है बिलावल साहब के इलाके में उनके नाना के कि जहां पर ना टीचर है, ना जहां पे स्कूल का फर्नीचर है, ना जहां पे स्कूल के कमरे हैं, ना वहां पे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ना बेंचेस हैं। हाँ ट्रैक्टर है, वो एक वहां डिश लगाई हुई है इन लोगों ने, जो लोग यहाँ पे इस वक्त रह रहे हैं। स्कूल तो है नहीं, स्कूल के ऊपर अब रह रहे हैं, वही पूछते हैं इसके मामला वजह क्या है। यहाँ जानवरों के लिए चारागाह है तो हो सकता है जानवर यहाँ बनते हो, चरपाइयाँ हैं यहाँ पे लोग सोते हैं। अगर मैं आपको अंदर ले जाऊँ और दिखा सकूँ, ये बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पढ़ाई नहीं होती। ये क्लासरूम है, ये ट्रैक्टर, ये मंजियाँ, ये है लाड़काना का स्कूल, सुपरमैन का स्कूल है, ये सुपरमैन साहब का स्कूल है। ये आप देखें स्टूडेंट्स तो नहीं, यहाँ पे ये बंदा रहता है, ये चरपाई इधर पड़ी हुई है। और ये ब्लैक बोर्ड है, इसको आई थिंक सालों से कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ आप चरपाइयों की पोजीशन देखें, वो भी बड़ी उसी सिंध के असल कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही को ये चरपाई जो है ये डिपिक्ट कर रही है। सामान पड़ा हुआ है, जानवर बंधे होते होंगे इधर। यहाँ के लोगों से पूछते हैं जो यहाँ पे काबिज हुए हुए हैं, ये स्कूल हुआ करता था पहले? हाँ बिल्कुल। क्या नाम था स्कूल का? हाकिम जियो। तो ये बताएं यहाँ पे ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, फर्नीचर है नहीं स्कूल का, ना टीचर है ना स्टूडेंट्स हैं, ये है क्या चरपाइयाँ लगी हुई आप लोगों की? हुकूमत देती नहीं टीचर। हुकूमत क्या नहीं करती? नहीं देती है, मास्टर नहीं देती। नहीं तो आप लोगों ने सोचा कि चलो वो दिन देती, आप यहाँ कब्जा कर रहे हैं? बिल्कुल, जगह तो खाली पड़ी है ना, दूसरे वाला भी कोई नहीं है, पूछने वाला भी कोई नहीं, जगह भी खाली पड़ी है। वो छोटे छोटे बच्चे ध्यान करते हैं इधर से, छोटे छोटे बच्चे ध्यान इसमें क्या करते जाता है ना। अच्छा, नुकसान हो जाता है ना। आपने अगर नुकसान रोकने के लिए आप भी यहाँ शिफ्ट हो जाए। जी। तो आपका घर नहीं था तो आपने का स्कूल में घर बना ले? बिल्कुल। क्या नाम आपका? गुलाम रसूल। अच्छा, तो गुलाम रसूल साहब ये खेती बाड़ी और ट्रैक्टर भी तो रख लिया आपने अंदर ला? बिल्कुल, हमने तो काम करने के बाद ये ट्रैक्टर स्कूल की बिल्डिंग में पार्क कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जानवर वगैरह भी ये बंधे होते हैं, हम जानवरों का भी वो नजर आ रहा है, शिट वगैरह। जी, जानवर भी स्कूल में बांधते हैं। तो डेरा बना लिया उसको? हाँ, डेरा बना लिया। शर्म के मुकाम नहीं है स्कूल को जो है घर का डेरा बना लिया जाए? क्यों? स्कूल है, स्कूल रहना चाहिए। यहाँ पे टीचरों को होना चाहिए बजाय। अभी टीचर हम छोड़ दूंगा स्कूल है जी। अभी टीचर दे दो, अगर अभी टीचर दे दो आप छोड़ देंगे जगह? बिल्कुल अभी छोड़ूंगा। जब तो टीचर ही दोगे नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा। क्यों?
बिल्डिंग को नुकसान देते हैं छोटे छोटे बच्चे। लेकिन ये बिल्डिंग सरकारी है ना? हाँ बिल्कुल। तो आपका नुकसान है, सरकार का नुकसान होगा ना? हाँ। आप लेकिन यहाँ मौज कर रहे हैं कब्जा करके चपाइया साथ, मतलब मौज तो लगी सुकून से। तो ये बताएं कि बेसिकली यहाँ पे कितना अर्सा पहले स्कूल हुआ करता था? आप कब आए यहाँ पे? हाँ। आप इस जगह पे कब काबिज हुए? कब रहना शुरू किया आपने यहाँ? 3-4 साल हो गया। उससे पहले स्कूल था ये? बिल्कुल। स्टूडेंट्स आया करते थे। सिंध फेस्टिवल का पता है? नहीं। सिंध फेस्टिवल का नहीं पता? सुपरमैन कौन होता है पता है? सुपरमैन का नहीं पढ़ते हो वैसे आप? पढ़ते थे पहले, अब बंद हो गया ना स्कूल। अच्छा, इस स्कूल में पढ़ते थे पहले, अब बंद हो गया तो अब नहीं पढ़ते। क्या नाम आपका? बिलावल साहब का पता है? फेस्टिवल यहाँ हुआ था अभी यहाँ मोहनजोदड़ो में, उसका पता है? आपको बुलाया भी नहीं गया? अभी आपको लेके चलेंगे एक ऐसे हेल्थ यूनिट की तरफ व्यूअर्स जो 70 की दिहाई में दिया गया, भुट्टो साहब को गिफ्ट किया गया। इसका हाल क्या है आप देखें। सिंध का असल अगर आपने अवाम की ज़बू हाली या हालत देखनी है तो ये हेल्थ सेक्टर आपको दिखाएं। वैसे तो अक्सर मैं आपसे कहता हूँ मामलात की फ्रंट लाइन पे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ सवालात की फ्रंट लाइन पे, कभी किसी चीज की फ्रंट लाइन पे, कभी मसाइल की फ्रंट लाइन पे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ सिंध में गंद की फ्रंट लाइन से। ये जगह जो है ये वैसे तो गंदगी का ढेर है, लेकिन यहाँ पे दवाइयाँ भी पड़ी हुई हैं और हमें पता चला कि ये हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट था, हॉस्पिटल के तौर पे तोहफे के तौर पे जगह दी गई थी लेट जुल्फकार अली भुट्टो साहब को। ये भुट्टो साहब का अपना रकबा है, जाती रकबा है उनका, ये किसी हल्का भी उनका रकबा भी उनका अपना है। कुछ अर्सा चला, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बाकी सिंध का हाल है उसी को डिपेक्ट करता हुआ एक शाहकार हेल्थ यूनिट हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल। यहाँ पे दवाइयाँ तो नहीं है, इसके हाथों में मरीज तो मर जाते हैं क्योंकि यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता, यहाँ पे दवाई नहीं मिलती। लाड़काना के अंदर मोहनजोदड़ो से बिल्कुल 20 किलोमीटर जहाँ पे फेस्टिवल किया बिलावल साहब ने, वो तो लोग मर जाते हैं अस्पतालों के अहातों में, अपने घरों के आंगनों में। लेकिन जो जगह हॉस्पिटल भी दी जाती रही है इस गवर्नमेंट को, उसको भी कभी आज तक प्रायोरिटी पर उन्होंने चलाने की कोशिश महसूस नहीं की। वाटर गए भाड़ में, प्रेग्नेंट औरतें मरती हैं इधर क्योंकि डॉक्टर्स नहीं होते, मेडिसिन नहीं होती। ये पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिंध बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जिससे 25 किलोमीटर दूर अभी बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था। उस फेस्टिवल में ऑब्वियसली आपको गंदगी की ये बास उठती हुई जगह तो नजर नहीं आई होगी। वो सिंध का एक अच्छा पॉस्चर था, ये असल सिंध है। बिलावल भुट्टो साहब के लिए मैंने यहाँ पे कैमरा को लेके आया, देखें और आप भी इंजॉय करें सिंध को, कल्चर सिंध, ग्रेट सिंध, सुपरमैन बिलावल साहब। फेस्टिवल यहाँ पे हुआ अभी थोड़े दिन पहले, सिंध कल्चर फेस्टिवल, तो बिलावल साहब यहाँ से गुजरे नहीं इस जगह से देखते हुए हालात? सर बात यह है कि बिलावल साहब आते हैं मगर वो एयरपोर्ट पे उतरे, गाड़ियां उनको मिल जाती हैं, प्रोटोकॉल लेके पहुंच जाते हैं सदारती हाउस पे। सदारती हाउस के बाद फिर वो मोहनजोदड़ो चले जाते हैं, कभी भी वहाँ पे फेस्टिवल करते हैं। अब जो फेस्टिवल हुआ तो फेस्टिवल के हवाले से बात करूंगा। फेस्टिवल में ये अहम चीज थी कि ये फेस्टिवल जो है सिंध सकाफत है, मगर वहाँ पे सिंध सकाफत की एक चीज भी हमें नजर नहीं आई। वो जो सिंध फेस्टिवल चल रहा था वो टोटल बाहर के लोग थे। नाच गाना हो रहा था, आपके ख्याल में वो नहीं था? देखिए जी, अगर सिंधी में कहते हैं राग, अगर वो सिंधी में राग करवाते, हम कहते सिंध की सकाफत को उजागर किया जा रहा है। अगर सिंधी फनकार आकर वहाँ पे गाना बजाना करते, हम कहते हैं ये भी सिंध की सकाफत है। तो वहाँ कौन आए? वहाँ पे जो लोग आए हुए थे वो टोटल वो लोग थे बाहर के जो नाच गाना करने वाले, जिनको ना ये लोग जानते थे, ना ये लोग समझ सकते थे, ना वो इनको समझ सकते थे। ये बताइए कि ये खर्चा जो किया करोड़ों रुपए का जो लगा फेस्टिवल में, ये पीपल्स पार्टी ने किया है, बिलावल साहब ने जेब से किया, हुकूमत सिंध ने किया है? फेस्टिवल पे जो भी अखराजात हुए हैं वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लाइटिंग के ऊपर लाखों रुपए खर्च हुए हैं, वो सारे हुकूमत के ऊपर लोड हैं। अब जब हुकूमत के ऊपर लोड है तो वो सब लोड हमारे ऊपर आएंगे, ये टैक्स की सूरत में हम ही अदा करेंगे, ये मसाइल सारे हमारे ऊपर आएंगे। और उसमें क्या है कि आम आदमी को जाने नहीं दिया गया। या फेस्टिवल है ठीक है, आम आदमी चाहे वहाँ पे, आम आदमी गए नहीं वहाँ पे, कोई आम आदमी नहीं, जो आम सिंधी ये नहीं गए, नहीं कोई खास आदमी को लेता। 500 निशस्तें वहाँ पे कैंप की। अब 500 निशस्तें में उनके जो मेहमान गिरामी थे, जो साबका मिनिस्टर थे, साबका रहनुमा थे पॉलिटी के या मौजूदा रहनुमा वो आए थे, उनके लिए था। लेकिन आम आदमी के तो वहाँ पे दाखिला ही ममनू था। तो हमारा प्रोग्राम जारी है, आप देख सकते हैं
कल्चरल फेस्टिवल में क्या हुआ और फेस्टिवल के आसपास की जो बदहाली है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो क्या है, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त सिंध से, लाड़काना से, भुट्टो साहब के जाती रकबे से। सिंध, कराची और दही सिंध के लॉ एंड ऑर्डर को आपको दिखाने के लिए लेके आए इधर। यहाँ मुमताज़ भुट्टो साहब के घर में खड़ा हूँ मैं। मुमताज़ भुट्टो साहब से पूछने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली सिंध, दही सिंध इतना गैर महफूज क्यों है कि शाम 4 बजे के बाद जो इनका एरिया है, जैकबाबाद जैसा एरिया, नवाबशाह जैसा एरिया, गड़ी खुदाबख्श जैसा एरिया, लाड़काना जैसा एरिया, वहाँ पे कोई इंसान ट्रैवल ही नहीं कर सकता। यहाँ पे डाकुओं का, बंदूक का, लॉ एंड ऑर्डर का राज होता है। और फिर यही चीज़ें डिपेक्ट करती है कराची के अंदर भी, और कराची के अंदर भी इतनी ही लॉलेसनेस है, इतनी दही इलाकों में। मुमताज़ भुट्टो साहब जानने की कोशिश करते हैं। एक्सक्लूसिव शो हमारा चल रहा है कराची और सुबह सिंध के लॉलेसनेस के ऊपर, आप हमारा साथ देंगे। देखिए बता दीजिए कि तुलना में है कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आपसे रब्ता किया कि आप उनको ज्वाइन करें या मिल जाए? नहीं, कोई डायरेक्टली कोई रब्ता नहीं है। बिलावल भुट्टो को आप किस तरह देखते हैं? अभी मैदान में आए हैं, उसमें भुट्टो का खून है, ये ऐसे कोई इफ्तार हो ही नहीं सकता। बाकी वो किस किस्म का रवैया रखते हैं यहाँ सियासत में, अवाम के साथ, खानदान के साथ, हम देखेंगे। अगर उसका रवैया मुस्बत रहा तो हम भी उसी किस्म का रिस्पॉन्स। आपसे मुलाकात हुई उनकी कभी? आज तक कभी नहीं हुई। इसकी क्या वजह है? आपका तो खून बस वो बाहर पढ़ते रहे हैं, यहाँ तो अभी आए हैं मैदान में, और फिर जश्न मनाने में मसरूफ हैं तो मौका नहीं। कल्चरल फेस्टिवल क्या हुआ है? तो उनसे पूछे, मैं क्या बताऊं। सिंध का नाम न लगाते कि सिंध सखाफत। अब गधों की दौड़ कहाँ है सिंध की सखाफत में? या सिंध की सखाफत जो है सो अजरक और टोपी तक मौजूद है। ये अजरक और टोपी तो वो कबायली इलाके में भी पहनते हैं, बलोचिस्तान के दूर दराज इलाके में पहनते हैं। सिंध की जो लिटरेचर है, सिंध की जो तारीख है, उसका तो इसमें कोई पहलू ही नहीं है जश्न। यहाँ तो नाच गाना है, ये तो मुजरे हो रहे हैं। जो सिंध फेस्टिवल हुआ है, हाँ सिंध फेस्टिवल, सिंध न लगाते, फेस्टिवल का नाम लगाते तो फिर तो ठीक। सिंधियों ने शिरकत नहीं की इस फेस्टिवल में? आने ही नहीं देते। वो तो खुद खुशामदी, दरबारी, चमचे, पैदागीर, उनके वो पंडाल भरे हुए होते हैं, वो मोटे पब्लिक के लिए कहाँ खुला है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो परफॉर्मेंस दी, सुपरमैन बन के, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बस उसमें मैं अपने कमेंट्स जो है रिजर्व कर रहा हूँ। ठीक है। मुमताज साहब ये बताइए कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है कराची का और सिंध में अगर आ जाए, अभी भी मैं बाकायदा पुलिस मुकाबला सड़क में हो रहा है, जब मैं गुजर के आया हूँ तो वहाँ खुलेआम ही पुलिस मुकाबला चल रहा था। पुलिस वाले जो है सड़क रोक के जो है वो 2 सफेद कपड़े वालों को मारे थे, पता नहीं वो डाकू थे वल्लाह आलम क्या थे। लेकिन यहाँ पे मुमताज साहब ये कहा जाता है कि शाम 4 बजे के बाद जो है ये नवाबशाह का इलाका हो गया, ये जहाँ पे हम बैठे हैं आपका ये इलाका हो गया, लाड़काना से सफर तक का। वो कहते हैं शाम 4 बजे के बाद जो है यहाँ पे डाकुओं का राज होता है, बंदूक का राज होता है, कोई पुलिस नहीं होती। ये बात सही है? लॉ एंड ऑर्डर इतने खराब है? बिल्कुल सही है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। कराची पूरी सिर्फ कराची बनी हुई है। इसकी वजह क्या है? यहाँ का क्यों खराब है? क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो बिल्कुल नालायक और नाअहल इन्हें रखे हैं, जो जरदारियों की कदम बोसी करता है। ये तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी बेंच पे जब था कहा था कि इस हुकूमत में जो अच्छा, ईमानदार, काम का आदमी ऑफिसर है उसको लात मार के निकाल देते हैं। बेकार, राशि, झूठे, इनकी कदम बोसी करने वाले, रूल्स की खिलाफ वर्जी वाले वो लगाए हुए। ये इधर यही निज़ाम है। बस खुशामदी दरबारी पुलिस ऑफिसर बड़े बड़े पहरे देते हैं, सैकड़ों की तादाद में नाच कूद करते हैं इनके सामने, नाजायज गैर कानूनी काम करते हैं इनके हुक्म पे, वो लगाए हुए हैं। वो बस उनको खुश रखा हुआ है, अवाम जो है वो जहन्नम में जाए। यहाँ पे गुर्बत बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा डाकू है मुमताज साहब? नहीं, सिंध में नहीं, डाकू इसलिए है कि ये पुलिस की कारकर्दगी जो है वो जीरो है, इसलिए डाकुओं के लिए मैदान खुला हुआ है। ये पुलिस पोलिटिसाइज है क्या है? पुलिस क्या है यहाँ? पुलिस जो है किसको प्रोटेक्शन देती है? अगर अवाम को प्रोटेक्शन तो होती है। वो मैंने बताया ना, ये तो सिर्फ हुक्मरानों की खिदमत कर रहे हैं, कदम बोसी कर रहे हैं। अवाम को तो ये मौजूद ही नहीं समझते पुलिस वाले। हाँ बिल्कुल। और वज़ीर आला सिंध क्या करते हैं? वो सोए रहते, उसको तो वो बेचारे को बिठाया हुआ है, वो थोड़ी हुकूमत चला रहा है, ये जरदारी खानदान चला रहा है। आसिफ जरदारी, उसकी बहनें, वो एक और पैदा हुआ है टप्पी खान, पता नहीं क्या नाम, ये चला 5। टप्पी? हाँ। आपके इल्म में नहीं है वो कौन है वैसे मुजफ्फर टप्पी? नहीं, मैं कभी नहीं मिला उनको। तो वो चला रहे, ये बेचारा, इसको तो 88 वाली दौर में बेनजीर ने चीफ मिनिस्टर बनाया था, 6 महीने के बाद तो हटा दिया था इसको।
तो मुदासा स्कूल तो यहाँ पे है नहीं प्रॉपर हालात में, ना टीचर्स है ना कोई आता है ड्यूटी। तो ये हुकूमतें हैं ना नालायक, जो यहाँ करप्ट हुकूमतें हैं। करते हैं कि यहाँ लोगों को मॉडर्न तालीम मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपना खुद कुछ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ पे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी वसीयत होती तो हम करते। मदरसा तो मेरे वालिद साहब चलाते थे यहाँ, 100 से ज्यादा यहाँ तालिब होते थे, मुफ्त में सब कुछ। और आप बिलीव करते हैं लैंड रिफॉर्म आया, हमारा सब कुछ गया, तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बिलीव करते हैं कि बच्चियों की तालीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तालीम के सिवा तो अब इंसान जी नहीं सकता, अव्वलीन रिक्वायरमेंट है तालीम। ये मैं इस वक्त मोहनजोदड़ो खंडरात की सबसे बुलंदी पे खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मेरे नीचे तमाम खंडरात मेरे नीचे हैं, लेकिन इस ऊंचाई का मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों के ये खंडरात हैं, जो इसके वारिस हैं असल अवाम सिंध की, वो भी अपनी कमाल उसी बुलंदी पर हैं। वेलफेयर के हवाले से, तालीम के हवाले से, ख्वानदगी के हवाले से, अपनी जिंदगियों के लिविंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से, उस लिहाज से सिंध की अवाम इस खंडरात की बुलंदियों, जब मैं उनको देखता हूँ मोहनजोदड़ो के खंडरात की बुलंदियों से, तो मुझे वो बहुत नीचे नजर आते हैं। उनका ज़ौक़ आ गई, उनकी अक्ल और शऊर, उनका रहन सहन, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स मुझे पूरे पाकिस्तान में बहुत नीचे नजर आते हैं। मुजरिमाना गफलत है, जानबूझ के उनके शऊर को ज़ेर दस्त रखा है यहाँ के जागीरदारों ने, यहाँ के जागीरदार सियासतदानों ने, यहाँ की रूलिंग एलीट ने, यहाँ की मेरास ने। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। उससे बड़ा सवाल ये है कि वो सब कुछ तो हो गया, वो कौम अपनी हालत खुद बदल नहीं सकती अगर जुस्तजू ना हो। यहाँ पे जुस्तजू भी नजर नहीं आई। अवाम जिस बुरे हालत में भी है, वोट मेरास को जाएगा और एक ही क़यादत को जाएगा। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब खुशकिस्मत है, अब वो चाहे सुपरमैन बन के उड़े, बैटमैन बनकर आए, या वो कुछ भी करें, बल्ला घुमाएं, अवाम सिंध की उनके साथ है। यहाँ की अवाम को स्कूल्स ना मिले जो कि हमने दिखाए कि नहीं है, यहाँ की अवाम की स्कूलों की छतें गिर रही हों, बच्चों की छतें गिर रही हों जो हमने आपको दिखाई कि गिर रही हैं, यहाँ की अवाम के पास पानी पीने को ना हो साफ, यहाँ की अवाम को फेस्टिवल के नाम पे अपने ही सिंध की सकाफत के अंदर बुलाया ना जाए, यहाँ की अवाम में ये शऊर ही ना हो कि फेस्टिवल कहते किसको है, सुपरमैन कहते किसको है। ये सब होने के बावजूद एक्चुअली वोट पड़ेगा सिर्फ बिलाल भुट्टो जरदारी साहब को, जो इस वक्त की एग्जिस्टिंग लिविंग सिचुएशंस है सिंध की। सिंध के बदलने में शायद दिहाइयां सदियां लग जाएं। कौन इसको चेंज करेगा? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन जिसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। मैं कामरान शाहिद एक अहम तरीन जगह वादिया सिंध पाकिस्तान से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। मोहनजोदड़ो के खंडरात हैं, यहां से देखें तो पाकिस्तान सिंध बहुत नीचे नजर आता है, बहुत पीछे नजर आता है।